as the topic has been announced, promoting research in STEM education. So I'm presuming a couple of things. One is that all of you are from technology, engineering, and mathematics background, and also in education. So educationists who are from science, technology, engineering, mathematics background. I am purely from social science background. I was thinking of Arvindji for a couple of days to call him, but he was out of stations. My good luck, he called me this morning and I invited him. And I'm sure without any preparation, Arvindji can justify his presence. So मैं social science perspective लूंगा. I have listened to a couple of your sessions in yesterday and this morning. I was really impressed by the first session of today. I'm forgetting the name from my colleague from US was conducting that session. Professor Chandralekha Singh. चंद्रलेखा सिंह बहुत अच्छा बताई वो, और बहुत सारे इशू उठाई. हम एग्री नहीं करते हैं बहुत सारी चीजों से, लेकिन उनके आर्गुमेंट्स में बड़ा दम था. One that, as I told you, I will be taking a purely social science perspective, and I have invited Arvindji, who will take a different view perhaps. First is, do we need to distinguish between science research and social science research? And what is that? So when Kushagra gave me this topic, I was reminded of an article by A.C. Snow, The Two Cultures. A.C. Snow starts by taking, he's a scientist, and he says, when I am in the company of social scientists, they always say, ये साइंस वाले क्या करते हैं? और जब साइंटिस्ट के बीच होता हूं, ये कहते हैं सोशल साइंस वाले करते क्या है भाई? ये लैब भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर ये रिसर्च क्या है? ये बहुत जरूरी है हमको समझना कि रिसर्च से हम समझते क्या है और रिसर्च होता क्या है. One starting point can be that when in academia, especially in Indian universities, when we talk of research, we most often think of degree-based research. अरविंद जी, आप जहां भी चाहिए हमको रोक के इंटरवीन कर सकते हैं. we will have a dialogue. हम इसीलिए बुलाए कि हमारा आप डायलॉग करेंगे. नहीं सर, बिल्कुल ठीक है आप. हाँ जी. तो हम हमेशा ये सोचते हैं पीएचडी डिग्री वही है. Degree as research has a larger connotation, and in the university system, it should mean, to my understanding, besides doctoral degree, besides degree-based research, original research. कोई नई बात कह रहे हैं क्या? हमारे रिसर्च से कोई नई बात निकल रही है क्या? कोई नई आर्गुमेंट ही हो, एक नया सोच ही हो, एक नया पर्सपेक्टिव हो, वो भी रिसर्च है. तो हम जिस पर रिसर्च कर रहे हैं, एक बार मैं कलेक्ट करने लगा कि एजुकेशन में जो रिसर्च थीसिस हैं, तो हमको 8-10 टर्म ही मिल पाए कि इसी पर सारे पीएचडी होते हैं. रूरल अर्बन, मेल फीमेल, पेरेंटल एस्पिरेशन, इससे बाहर हम निकलते ही नहीं है. कोई नई बात कहने को ही हम शायद रिसर्च करना चाहते हैं, और वही रिसर्च भी हो. I am not undermining applied research. One is degree-based research, the other is original research, but I am not undermining the applied research. What is very important in everyday life, what the expert was talking about today, कि हम इंडिया के इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं तो वहां हम जबरदस्त थियोरीज पढ़ते हैं. वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में काम करते हैं तो हम उसका एप्लीकेशन देखते हैं. तो बच्चे जब इंडियन स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो वो बहुत मेहनत से, शिद्दत से अपने थियरीज को समझते हैं. लेकिन वेस्टर्न में उसको एप्लीकेशन कैसे किया जाए, उसका एप्लीकेशन कहां हो, ये देखने का प्रयास करते हैं. दोनों का महत्व है और दोनों को हमको अलग अलग रखना चाहिए. अब ये बड़े सारे कॉन्टेक्स्ट खड़ा करता है कि रिसर्च का एक कल्चर होता है, रिसर्च के बड़े आयाम हैं, तो उसको प्रमोट करना चाहिए. तो प्रमोटिंग रिसर्च इन स्टेम इन इंडियन यूनिवर्सिटीज और इन एजुकेशन, ये क्या मामला होगा? एक तो ये है कि कैच देम यंग.
research should start from very early age. I don't know, my understanding is research should start from school. Children should be put into that habit of thinking originally and raising questions which can later become research questions. We often discard questions of young children, but if we look at their questions very carefully, they can become very serious research questions ultimately. कुछ समय पहले एक बड़ा अच्छा स्कीम शुरू हुआ अटल टिंकरिंग लैब्स का स्कूल में, और ये स्कूल्स में एस्टैब्लिश किए गए विथ अ लॉट ऑफ मनी एंड सप्लाईज, काफी इक्विप किया गया उसको। और जो अब नतीजा निकल के आ रहा है कि ये बच्चे जो अटल टिंकरिंग लैब्स जिन स्कूल्स में बना था, वो अलग तरह से सोचते हैं, वो ओरिजिनल क्वेश्चंस करते हैं। तो व्हाट आई सेड, रिसर्च इज अ बेंट ऑफ माइंड, इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग। तो ये चाहे साइंस में करिए, चाहे सोशल साइंस में करिए, ये आपको एक हमेशा इंक्विजिटिव क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट करने का प्रोसेस है, जो बहुत बचपन से हो सकता है, शुरुआती पढ़ाई से हो सकती है। अब ये नहीं हम समझ पा रहे हैं कि इसमें साइंस और सोशल साइंस में भेद कहाँ किया जाए। जो बच्चा साइंस में अच्छे क्वेश्चन उठा सकता है, वही सोशल साइंस में भी उठा सकता है। हो सकता है कि वो उसके बैकग्राउंड के कारण वो साइंस में ज्यादा पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाए, डिपेंडिंग अपॉन फैमिली बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, द कॉन्टेक्स्ट, family and social context in which he or she lives, can raise more questions, better questions in a particular area. That is a different thing. But then this, to my understanding, is a habit which is inculcated and developed through various ways. जो दूसरा क्रिटिकल क्वेश्चन हम उठाना चाहेंगे कि हायर एजुकेशन में रिसर्च, हम लोग लगातार स्टूडेंट्स को एडमिशन के प्रोसेस में बुलाते हैं, उनका प्रपोजल सुनते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर नॉट हैप्पी विद द प्रपोजल। कई बार तो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैंने ये सुपरवाइजर से पूछ के बनाया है। कई यूनिवर्सिटी में ये कहते हैं कि ये टॉपिक तो मेरे सुपरवाइजर ने ही दिया है, ये स्टूडेंट्स आके पूछते हैं। तो ये तो बिल्कुल रिसर्च नहीं है, इसको आउटराइट रिजेक्ट करना चाहिए, इस पर हम डिस्कशन भी नहीं करेंगे। लेकिन रिसर्च क्या चीज के लिए है? आई थिंक इट अल्टीमेटली लीड्स टू क्वालिटी इंप्रूवमेंट। आई एम रेजिंग दिस थर्ड इशू and after that I'll request Arvind ji to reflect on this topic. Ultimately it targets towards quality improvement. वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, और वो सब पार्ट ऑफ रिसर्च होंगे। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम ओपन माइंड से दूसरों को देखें कि दूसरे क्या कर रहे हैं। मेरा ऐसा अनुभव है, when I visit universities, when I talk to teachers, when I talk to researchers, we are working in isolation, in silos. So we are not really familiar, aware of what good work is going on at other places. तो हम खुश रहते हैं कि हम तो बड़ा बच्चा रिसर्च करा रहे हैं। अगर आप उनके रिसर्च वर्क को पढ़ें, let me take the example of publications. We have डिजाइन many scales, यूजीसी केयर लिस्ट है, पब्लिकेशन जो है वो आपका यूजीसी से अप्रूव्ड है या रेफरीड है। इन सब का कोई मतलब नहीं है अगर आप आर्टिकल उसमें पढ़ लें तो। रेफरीड जर्नल का आर्टिकल हजारों गलतियां मिलती हैं, तो क्वालिटी इंप्रूव कहां हुआ उससे? ये रिसर्च और उसका पब्लिकेशन। हम एकेडमिया में दो बात कहते हैं, राइट एंड स्पीक। दीज आर आवर यूएसपीज। यू आर अ गुड स्पीकर एंड you write well, write what you think you know
एंड दैट रिफ्लेक्ट्स योर माइंड। लेकिन जो छप रहा है वो तो कूड़ा है। तो रिसर्च, जैसा कि आज सुबह में भी कई बार बात आई, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जितने भी एग्जाम्पल कोट किए उन्होंने, वो सब ओरिजिनल एक इशू खड़ा किया था और ओरिजिनल टॉपिक पर, चाहे वो कितना भी छोटा टॉपिक हो, उस पर काम करके एक नई बात कहे। ये नई बात उठ रही है क्या, तो वो क्वालिटी इंप्रूव होगा क्या? तो रिसर्च इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स का मतलब क्या है? अगर हम ये बात करें भी, अगर ये क्वालिटी रिसर्च नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या जरूरी है? हम दो तीन चीजों की चर्चा करेंगे। पहला जो मेरा पेट टॉपिक है, ऑटोनॉमी। जो रिसर्चर है उसको यह स्वायत्तता है, छूट है कि वो अपने विचार से एक टॉपिक लेके उस पर काम करे। लेकिन ऑटोनॉमी डजंट मीन एनार्की। रिसर्चर का लेवल वो नहीं है कि वो एक नया टॉपिक सोच सके, लेकिन भाई some design one gets that position and says I want to work on this and the topic is actually not workable. Why should the institution spend on it? I have never been a researcher, but somehow I hold a position of director and vice chancellor or blah blah blah. Then does it mean I will get money to research? Should there be somebody who should assess? Should there be an assessment process? So I will take two issues simultaneously. One is autonomy is important for research. Researchers must be given that autonomy and funded to do research. But then that doesn't mean that anybody and everybody should get that money because it's public money. जो डिजर्विंग है उसी को मिले। जो दूसरी बात है, इसका प्रोसेस क्या होगा? I will only refer to one parameter and then Arvind ji will come in. Times Higher Education Assessment of Institutions का स्केल है, उसको जरूर देखिए। वो क्या कहता है? किसी भी यूनिवर्सिटी के में अगर एसेस करना है तो ये देखिए कि आपके कितने रिसर्चर दूसरे जगह जाके काम किए और दूसरे इंस्टीट्यूशन के कितने रिसर्चर आपके यहां आके काम किए। इज इट इंपॉर्टेंट? इज इट इंपॉर्टेंट टू कोलैबोरेट? एंड what different methods of collaboration can be there? One is आईयूसी टीम अच्छा काम हो रहा है तो कुछ लोग जाके वहां रहें, देखें, बात करें, आपको एसेस करें, और आप जाके उनकी संस्था में रहिए ताकि आप देखिए कि वहां रिसर्च कैसे होता है। जितनी बातें आज अमेरिकन यूनिवर्सिटी के बारे में बताई गई, अगर हम जाके अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में, कई बार बोलता हूं, जो कई लोगों को खराब भी लगता है, कि अगर आपने वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस नहीं देखे हैं तो आपको पता नहीं है कि इंडिया उनकी रिसर्च का क्या मतलब होता है। I know this will displease many, but then to my understanding that's the truth, that it's a culture, it develops through decades and centuries. We need to learn from visiting, seeing, working together. Collaboration is a major thing. Now इसके साथ का ही प्रश्न है कि जब आप टाइम्स हायर एजुकेशन का असेसमेंट फॉर्मेट देखें तो वो दो बातें कहता है। आपके यहाँ कितने विदेश के टीचर पढ़ाते हैं और आपके यहाँ कितने विदेशी विद्यार्थी पढ़ते हैं। आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी कहा गया है कि हम इसको प्रमोट करेंगे। क्यों करेंगे प्रमोट भाई? इंटरनेशनलाइजेशन क्यों होना चाहिए एजुकेशन का? केवल रेवेन्यू तो नहीं है कि हमारे इंस्टीट्यूशन में सडनली 200 अमेरिकन बच्चे आ गए या 500 विदेशी बच्चे आए तो मेरा इंस्टीट्यूशन बढ़िया हो जाएगा। बढ़िया होगा क्योंकि वो मल्टीकल्चरल होगा, और इंस्टीट्यूशन का मतलब ही वही है। और वो अपने अपने संस्थाओं से जो सीखे हैं वो लेके आएंगे और तब सब मिलकर के एक बेटर रिसर्च पैराडाइम खड़ा करेंगे। तो मुझे लगता है कि तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जिससे मैं शुरू करना चाहता था। पहला तो ये कि लेट अस नॉट स्टार्ट विद द प्रीमाइज कि साइंस में बढ़िया रिसर्च होता है, आर्ट्स में नहीं, ह्यूमैनिटीज में नहीं। ह्यूमैनिटीज में वो ताकत है कि एक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर जो एक आर्टिकल होगा वो पूरे समाज में बवाल खड़ा कर सकता है। दूसरा ये कि बचपन से ही एक ट्रेंड शुरू होता है, हम
20 साल 22 साल की उम्र में अगर चाहें कि किसी बच्चे में वो रिसर्च एक्यूमेन पैदा करें तो थोड़ा मुश्किल होगा। हमको रिसर्च के लिए बचपन से देखना पड़ेगा। और जो सुबह में बड़ा स्ट्रांगली प्लेस किया गया था कि इसमें जेंडर बिल्कुल कोई इशू नहीं है। आप लड़कियों को अच्छे साइंस लैब में या अच्छे स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं उसमें आप बैठाइए तो वो 6-7 साल की लड़कियां वो आगे जाके, मैं फिनलैंड के बच्चियों को देख के आया हूं और बच्चियां वहां उतने ही सकत से साइंस के बारे में बात करती हैं जितने मेल्स। तो वो मेरे लिए बिल्कुल इशू नहीं है। आप जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। और तीसरी बात जो मैंने कहा कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग और ऑटोनॉमी ये इंपॉर्टेंट है, चाहे वो साइंस का रिसर्च हो या सोशल साइंस का हो। ऑटोनॉमी जरूरी है, कोलैबोरेशन जरूरत है और इसके बेसिस पर ही हम अच्छे इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं या अच्छा रिसर्च हो सकता है। दीज आर माय इनिशियल कमेंट्स। आई विल इनवाइट अरविंद जी टू चिप इन एंड गिव हिज पर्सपेक्टिव। हमने जानबूझ के अरविंद जी को यही कहा था सुबह में, हमारा डायलॉग करेंगे, एग्री करना जरूरी नहीं है। जी हमारे सर, साथी लोग हैं वो भी अपनी बात रखेंगे तो हम एक जी आज सर, डायलॉग करेंगे। जी अरविंद जी। जी सर। नहीं सर, बिल्कुल आपने एक बात जो कही जो समझना है कि मैं 3 मुख्य बिंदुओं के इर्द-गिर्द अपनी बात को रखना चाहूँगा। पहली बात कि जो लोग ये कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ रिसर्च सिर्फ स्टेम में है और सोशल साइंस में या ह्यूमैनिटीज़ आई मीन लैंग्वेजेस में नहीं है, तो मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ, आप ही की तरह बिल्कुल। जो दूसरी बात, रिसर्च होता है और रिसर्च चाहे वो किसी का भी हो, लैंग्वेज का रिसर्च भी उतना ही पावरफुल है जितना कि सोशल साइंस का, और सोशल साइंस का रिसर्च उतना ही पावरफुल है स्टेम। और ये कैसे और क्या होगा, तो 3 बात। पहली बात कि एक सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि जब आप कहते हैं स्टेम रिसर्च, हाँ, इस टॉपिक भी है स्टेम एजुकेशन रिसर्च, तो पहले हम समझ लें स्टेम हम सबको अर्थ पता है, साइंस, राइट, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अगर आप कहते हैं कि देयर इज ए नीड टू एम्फेसाइज रिसर्च ऑन ऑन स्टेम ओनली, इसका मतलब आप एक तरफा पर्सपेक्टिव बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि व्हाई स्टेम रिसर्च। तो ज्यादातर आंसर्स जो मिलेंगे आपको स्कॉलरली पेपर में वर्ल्ड ओवर, वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। अमेरिका की एक स्टडी है जो बताता है कि स्टेम स्ट्रीम के जो लोग आए हैं वो मैक्सिमम उसकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, और देयरफॉर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च किस पे फोकस होना चाहिए, तो स्टेम पे होना चाहिए। वही उसी अमेरिका की एक दूसरी रिसर्च है जो कहा कि जो लोग सिर्फ स्टेम के हैं, यानी केवल मैथमेटिक्स के हैं या इंजीनियरिंग के हैं या टेक्नोलॉजी के हैं या एक्सक्यूज मी या साइंस के हैं, राइट, वो उस तरीके से नहीं कंट्रीब्यूट करते हैं ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में जिस तरीके से मैथमेटिक्स का व्यक्ति ने सोशल साइंस भी पढ़ा है, या इंजीनियरिंग के व्यक्ति ने भी ह्यूमैनिटीज को पढ़ा है, या साइंस के व्यक्ति ने ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस को पढ़ा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। ड्यूक यूनिवर्सिटी में जब आप एमबीबीएस करते हैं तो वहाँ ये कंपलसरी होता है फर्स्ट 2 सेमेस्टर में कि आपको फिलॉसफी ऑफ मेडिसिन पढ़ाई जाए, सोशियोलॉजी ऑफ मेडिसिन पढ़ाई जाए और साइकोलॉजी ऑफ मेडिसिन पढ़ाई जाए। तो मैंने ड्यूक के टीचर्स से भी इंटरेक्ट किया और उसके स्टूडेंट्स से भी किया। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स योर रिएक्शन? तो बिलीव मी कि उनका फर्स्ट रिएक्शन था, और जो क्वेश्चन हम लोगों ने बार बार किया था, जैसा एक छोटा एनेक्डोट और शेयर करूंगा। मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय के हॉस्टल के रूम नंबर 176 में रहता था, तो 175 में बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च करने वाला हमारा एक था, वही दिल्ली यूनिवर्सिटी के लैब में। तो उसने कहा कि अरविंद आज मैं तुम्हें अपनी लैब ले चलूंगा। मैंने कहा चलो तुम्हारा लैब देख के आते हैं। हम गए, फिर वो ऐसे ही हम डिनर पे बात कर रहे हैं तो कहा हम लोग तो ये रिसर्च करते हैं, तुम लोग क्या रिसर्च करते हो? तो मैंने कहा कि सौमिक, एक सवाल मुझे तुमसे पूछना है कि व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी or bioengineering or any sciences. The ultimate aim is whether you conduct your research in physics, chemistry, mathematics, engineering, science, or technology, the ultimate aim is to enrich human life. To enrich human life. Now, enriching human life means what? Not only enriching from the financial and economic perspective, but to enrich in overall sense. अगर एक अच्छा साइंटिस्ट ये सवाल नहीं कर सकता है कि व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ बीइंग ए गुड ह्यूमन बीइंग,
at the same time being a good scientist. तो मुझे लगता है कि सिर्फ asking this question, what do you mean by being a good scientist, doesn't capture the need. पहली बात. दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि STEM एजुकेशन रिसर्च, तो समझना पड़ेगा. एजुकेशन शब्द जैसे ही जोड़ते हैं, एक तो STEM को आप डिस्क्रीट वे में नहीं देखेंगे, आप एक कंबाइंड वे में देखेंगे जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स भी है. और इसलिए देखिए, चूंकि चारों की अपनी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, हालांकि एक ब्रैकेट के अंदर रखा गया, लेकिन अपनी इंडिपेंडेंट एंटिटी को मेंटेन करते हुए. तो जैसे ही उसमें एजुकेशन लगाते हैं, जैसे जो लोग टेक्नोलॉजी के हैं, हमारे इंडिया में भी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, तो फिर एक सवाल आता है कि डॉक्टर लोग पूछते हैं कि सर क्यों हमें पढ़ना चाहिए हाउ टू टीच. इंजीनियरिंग के भी लोग पूछते हैं क्यों हमें पढ़ना चाहिए हाउ टू टीच. तो मैंने कहा कि देखिए, आप इंजीनियर हैं लेकिन आप इंजीनियर टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं लेकिन आप डॉक्टर टीचर हैं. मेरे दोनों भतीजे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में और एक एम्स में, और उसकी वाइफ, दोनों डॉक्टर हैं. तो वही पूछा, हमने कहा कि अब तुम कैसे पढ़ाओगे और क्या पढ़ाओगे. अगर वो आपकी जानकारी नहीं है, तो स्टेम को स्ट्रेंथन करने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टेम का रिसर्च होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एक तरफा नहीं होनी चाहिए. ये डिबेट निराधार है कि स्टेम का जो रिसर्च होगा वो ज्यादा क्वालिटी लिए होगा और सोशल साइंस का नहीं होगा. देखिए, रिगर ऑफ रिसर्च डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ रिसर्च. और वो रिसर्च चाहे भाषा की हो, चाहे समाज विज्ञान का हो, समाज शास्त्र का हो, या शिक्षा का हो, या वो रिसर्च मैथमेटिक्स का हो, फिजिक्स का हो, या केमिस्ट्री का हो, या स्टेम का हो. तो स्टेम एजुकेशन का मतलब imparting STEM education to all, irrespective of the other challenges. As Professor C.V. Sharma very rightly and aptly said, देखिए, बार बार हम जेंडर पर्सपेक्टिव ले आते हैं, बार बार हम इक्विटी का प्रश्न ले आते हैं, बार बार एक्सेस का प्रश्न ले आते हैं. मैं नहीं कहता हूं कि ये चीजें हैं, नहीं हैं, बिल्कुल है. समाज है तो सब कुछ होगा ना, लेकिन कब तक हम उसी में उलझे रहेंगे. हमारा एक प्रयास होगा कि हम जो भी आ रहा है उसको तो पूरा मौका दें. सर ने बहुत अच्छी बात कही, मैं बिल्कुल सहमत हूं सर से, कि उन्होंने कहा कि देखिए, रिसर्च NIRF आज हम बना लिए, लेकिन रिसर्च की शुरुआत आप यूनिवर्सिटी लेवल पे क्यों करते हैं, आप कॉलेज लेवल पे क्यों करते हैं, आप विद्यालय लेवल पे क्यों नहीं करते हैं. और भारत में उसका कोई प्रोविजन है. मैं सिंगापुर का एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूंगा. क्लास 9th के 5 बच्चों का एक ग्रुप ने डिसाइड किया कि हम, उनको कहा गया कि तुम अपने एक रिसर्च प्रोजेक्ट बना के लाओ, और इंडिपेंडेंट थिंकिंग, कोई गाइड नहीं करता है, कुछ नहीं गाइड करता है, राइट. आपको टॉप प्रॉब्लम खुद ढूंढ के लाना है, वहां तक टीचर की कोई भूमिका नहीं होती है. और 1 सप्ताह का टाइम दिया गया और बताया गया कि इतने से इतने बजे तक केवल यही बातचीत करोगे. 5 बच्चों ने कहा कि हम सन की रेज के जो बिहेवियर है उस पर स्टडी करेंगे. हाँ, ये बात ठीक था कि उस समय, और आपको पता है 9th में क्या क्या उनके विषय थे, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड सोशल साइंस. एंड 9th में क्या होता है आप सबको पता है. उन बच्चों ने जब डिसाइड किया और एक छोटा सा प्रपोजल लिखा, उसमें नहीं लिखा हुआ था स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, रिसर्च क्वेश्चन, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, कुछ नहीं लिखा था. सिंपल 2 पेज 5 बच्चों ने लिखा और अपने जो टीचर इंचार्ज को दिया. टीचर इंचार्ज ने जब डिस्कशन किया तो उनके आइडिया से बहुत इंस्पायर हो गया और उसको गाइड किया कि हाँ, ये प्रपोजल ठीक है. अब उसकी स्टडी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट उनको चाहिए था, वो इंस्ट्रूमेंट उस स्कूल में अवेलेबल नहीं था. तो आप जानते हैं कि सिंगापुर को रेड डॉट नेशन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं. तो वहां हर प्रिंसिपल को मिनिस्ट्री के साथ डायरेक्ट एक्सेस होता है. जैसे आपको पता है कि बड़े बड़े पे हॉटलाइन एक होता है कि आप सीधा PMO से बात कर सकते हैं, आप सीधा प्रेसिडेंट से या उसके सेक्रेटरी से बात कर सकते हैं. वैसा ही वहाँ प्रिंसिपल के साथ होता है. प्रिंसिपल ने फोन उठाया और मिनिस्ट्री में फोन रिसीव किया गया और कहा गया कि हमारे पास एक रिसर्च प्रपोजल आया जिसका इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं है. मिनिस्ट्री में हुआ, कहा कि जस्ट गिव अस हाफ एन आवर. और हाफ एन आवर में मिनिस्टर ने डिसीजन किया कि forget about your school, forget about Singapore, wherever that instrument is available in the world, import them with immediate effect so that our students can conduct the research. और ये exactly हुआ. I follow
जैसा सर ने फिनलैंड का नाम लिया, मैं सिंगापुर के एजुकेशन को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। हमारे यहाँ रिसर्च का आर नहीं बच्चों को पढ़ाने दिया जाता है। उसी ग्रुप ने जब वो 11th में गए और 12th में, उनको कहा गया कि अच्छा आपने साइंस का एक कर लिया, फिजिक्स का, अब आप एक दूसरा करके आइए। तो डायबिटीज पे उन लोगों ने रिसर्च किया, और आपको ताज्जुब होगा, तीसरा रिसर्च जब उनको करने गया तो वो सारे बच्चों ने कहा कि रिसर्च करने के बजाय हम स्कूल में पढ़ाना जाना पसंद करेंगे और मिनिस्ट्री के साथ बात करना पसंद करेंगे। देखिए, रिसर्च एक कल्चर है। सर ने बहुत अच्छी बात कही, रिसर्च इज ए माइंडसेट। कल्चर पहले बनाइए, और कल्चर नहीं होगा तो आप रिसर्च नहीं कर पाएंगे। और उसकी शुरुआत, मैं बिल्कुल सहमत हूं सर से, प्रोफेसर सीवी शर्मा सर से, कि उसकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? विद्यालय से। अब आई बात, इसके लिए क्या करें? अगर आप समझते हैं, हाँ ये बात जरूर मैं कहूंगा, देखिए जब पैराडाइम ऑफ रिसर्च की बात आती है तो सबके पैराडाइम अलग होते हैं, और शायद वही पैराडाइमिक अंडरस्टैंडिंग हमारी नहीं हो पाती है, तो हम कह देते हैं ओ सोशल साइंस के रिसर्च इन्फीरियर है और साइंस की रिसर्च सुपीरियर है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप पैराडाइम की अंडरस्टैंडिंग, नेचर ऑफ पैराडाइम को समझने की कोशिश, और इसलिए मैं हर छात्र को कहता हूं कि आप टॉमस कून की वो किताब जो 1962 में पब्लिश हुई थी, और इसमें पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था टॉमस कून ने, और एक्सक्यूज मी, और उस किताब में टॉमस कून ने पैराडाइम शब्द का प्रयोग किया। आज आप देखिए, दुनिया का ऐसा कोई इंटेलेक्चुअल है, दुनिया का ऐसा कोई विषय है, दुनिया का ऐसा कोई डिसिप्लिन है जो पैराडाइम शब्द का प्रयोग नहीं करता है। लेकिन हाँ, तब आप अप्रिशिएट कर पाएंगे एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होने के बावजूद या फिजिक्स का स्टूडेंट होने के बावजूद कि सोशल साइंस का जो रिसर्च पैराडाइम है उसका नेचर क्या है। और इसीलिए आप देखिए कि सोशल साइंस और एजुकेशन में भी हम कॉपी करते रहे साइंस की पैराडाइम की रिसर्च, राइट। लेकिन आज मैं साफ कहता हूं कि पूरा का पूरा सोशल साइंस का रिसर्च जो है वो बोरोड पैराडाइम है। हमने सब कुछ पॉजिटिविस्ट पैराडाइम से लिया। समझना पड़ेगा, इसी दुनिया में जब मनुष्य के रूप में आप जीते हैं तो एक ही पैराडाइम नहीं है, कई पैराडाइम में आप जीते हैं, राइट। और उसमें क्या है? पोस्ट पॉजिटिविस्ट पैराडाइम, जिसको आज हम लोग कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम या क्रिटिकल पैराडाइम, नैरेटिव पैराडाइम, इन तमाम नामों से सुशोभित करते हैं। कि मनुष्य की सच्चाई को जानना है तो मुझे लगता है 3 बातें की जानी चाहिए। स्टेम एजुकेशन पे पहले एम्फेसाइज करिए। स्टेम एजुकेशन का क्या अर्थ है? नॉट एम्फेसाइजिंग द कंटेंट ऑफ द साइंस, not emphasizing on the content of the technology, not emphasizing on the content of the engineering, and not emphasizing only on the content of the mathematics. Why don't you educate your students who could be your potential researchers in future? वो excuse me, वो I'm sorry, actually थोड़ा सा अरविंद जी आप पानी पीजिए, मैं हाँ, एक थोड़ा दो सा आर्गुमेंट बीच में देता हूं जो सुनिए, फिर उस पर जी आप जी react जी करेंगे। जी जी सर, आप पानी पीजिए, आपको खांसी आ रही है, यू आर नॉट वेल, आई नो दैट, बट स्टिल आई ड्रैग्ड यू इनटू दिस। 2 चीजें जो अरविंद जी कह रहे हैं उसको मैं आगे ले जाना चाहूंगा। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि मेडिसिन जो पढ़ता है उसको थोड़ा फिलॉसफी ऑफ मेडिसिन, सोशियोलॉजी ऑफ मेडिसिन, साइकोलॉजी ऑफ मेडिसिन ये भी पढ़ना पड़ता है या पढ़ना चाहिए, तभी वो एक रियल सेंस में डॉक्टर बनेगा। That leads to another argument which I had in mind of giving, was that look, research cannot be cocooned and it cannot be in isolation. It has to be multi-dimensional. When you look at a problem, research is looking at problems. अरविंद जी सुन रहे होंगे, लुकिंग एट प्रॉब्लम्स, उसको जी सर, डिफरेंट सुन रहा हूं सर। पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। तो आप उसको, जो हम लोगों ने यहां कर लिया है, इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत हेविली एम्फेसाइज कर रहा है कि मल्टी डिसिप्लिनरी होना होगा एजुकेशन को। हमने ये तय कर दिया था कि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो साथ में मैथमेटिक्स या बायोलॉजी ही पढ़ना पड़ेगा। आप साथ में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकते हैं, एग्रीकल्चर नहीं ले सकते हैं, म्यूजिक नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों नहीं? जरा मैथमेटिक्स और म्यूजिक का कॉम्बिनेशन देख लेकर के बच्चे को पढ़ने तो दीजिए, साथ में फिलॉसफी भी देखे, तो वो शायद जैसा अरविंद जी ने कहा, फिलॉसफी ऑफ म्यूजिक, सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, हिस्ट्री ऑफ साइंस, अगर कोई हिस्ट्री, मैथमेटिक्स
और म्यूजिक लेके पढ़ता है तो शायद बड़े सारे कॉम्बिनेशन होंगे। तो आई थिंक एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और एरिया अरविंद जी ने खोला है कि हमको ये स्टेम का रिसर्च, साइंस का, सोशल साइंस का रिसर्च इन पर्सपेक्टिव से बाहर आकर के, और रिसर्च इन जनरल, रिसर्च हैज टू बी मल्टी डायमेंशनल। हमको उसी समय याद भी आया कि भाई बड़े सारे क्वेश्चन उठते हैं। सत्यकाम की कहानी आप सबको पता होगी, नहीं तो पढ़िएगा। सत्यकाम के लिए उसके टीचर ने क्या करिकुलम सेट किया, क्या ट्रांजैक्शन का तरीका सेट किया और क्या असेसमेंट का तरीका सेट किया, एकदम नॉवेल था, एकदम अलग था। तो इट लीड्स टू द क्वेश्चन कि हम जब एक डिसिप्लिन में बंद के रह जाते हैं, केवल एजुकेशन को ही देखते हैं, केवल पेडागोजी को ही देखते हैं, तो हम वो पर्सपेक्टिव्स खो लेते हैं जो कि रिसर्च में जरूरी है। इट रिक्वायर्स वाइड रीडिंग, नॉट ओनली ऑफ योर ओन डिसिप्लिन बट वेरियस डिसिप्लिन्स। इसीलिए फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स या फिलॉसफी ऑफ मेडिसिन या फिलॉसफी ऑफ सोसाइटी, सोशियोलॉजी और फिलॉसफी को जोड़ने की बात ये जरूरी है। और वो वही करेगा जो एक्सटेंसिव रीडर है, जो बहुत चीजें पढ़ता है, या एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है अरविंद जी, कि केवल पढ़ना ही नहीं, जब आप बहुत किताबें पढ़ते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव आता है, तब आप दोनों को कंपेयर करके उसमें फिर करते हैं। और आप ही की बात को बढ़ाना चाहूंगा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए ना, नाम ही डिग्री का क्या है, टू डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी। इसका मतलब आप कोई भी रिसर्च करने के बाद टू फिलोसफाइज नहीं करते हैं तो फिर रिसर्च क्या है। और टू फिलोसफाइज करने के लिए, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, टेक्नोलॉजी का हो, इंजीनियरिंग का हो, मैथमेटिक्स का हो, लैंग्वेज का हो, किसी भी डिसिप्लिन का हो, उसको तो हाउ टू फिलोसफाइज तो पढ़ना पड़ेगा ना। और इसीलिए फिलोसफी ऑफ रिसर्च तो पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरी बात सर, जो मैं उस समय कह रहा था कि जब आप नेचर ऑफ डिसिप्लिन से इसकी शुरुआत करिए, नेचर ऑफ डिसिप्लिन से जब आप शुरुआत करेंगे, और नेचर ऑफ डिसिप्लिन जब मैं कह रहा हूं तो उसमें अभी जो मॉडर्न डिस्कोर्स एनईपी 2020 ने भी कहा है कि मल्टी डिसिप्लिन, इंटरडिसिप्लिन, ट्रांस डिसिप्लिन, और फिर उसको लेके जाइए मेटा डिसिप्लिन, आई मीन डिसिप्लिन ऑफ डिसिप्लिन। जब वो अपनी डिसिप्लिन की गहराई को समझेगा तो सर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं समझूंगा कि अच्छा, गणित का अगर एक कोई थियरम है तो उससे मनुष्य को क्या फायदा होगा। आप सबको याद होगा कि पहले कितने डिजिट के हमारे टेलीफोन नंबर थे, और उस की प्रॉब्लम को अगले 50 साल के लिए, भारत की प्रॉब्लम को जो कि मतलब कई 100 करोड़ में होंगी, उसकी नंबर सिस्टम का एक छोटा सा वो सॉल्व कर दिया। तो अल्टीमेटली साइंस तो मनुष्य के लिए है ना, गणित मनुष्य के लिए है। तो मुझे लगता है कि स्टेम एजुकेशन रिसर्च को स्ट्रेंथन करने के लिए, बढ़ाने के लिए, पहली बात मल्टी पर्सपेक्टिव होनी चाहिए। दूसरी बात, आप नेचर ऑफ डिसिप्लिन से शुरुआत करिए, मल्टी डिसिप्लिनरिटी, इंटरडिसिप्लिनरिटी, ट्रांसडिसिप्लिनरिटी, और अंत में मेटा डिसिप्लिनरिटी पे लेके आइए। जब ये पर्सपेक्टिव पड़ेगा, जैसा कि सर ने अभी कहा कि जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है वो चीजों को डिफरेंट एंगल से समझने के लिए आपकी मदद करता है, और फिर हम उसको स्ट्रेंथन करेंगे और आगे करेंगे। सर मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा बोलने में मुझे दिक्कत नहीं हो रही अरविंद है। जी, हम अब तो चाहते हैं कि हम जी ये क्वेश्चंस को जी ओपन सर, करें, जी कि जी ताकि सर, हम जी प्रश्न उत्तर दे सके। हम हाँ लोग हाँ, अपनी बिल्कुल बात तो कह बिल्कुल, दिए जी हैं, जी 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 लेकिन जी कॉलीग्स सर। एग्री करते हैं कि नहीं हाँ, मैं करते मतलब हैं। थोड़ा कम बोलना चाहूंगा जी आपसे, जी जी। जी तो चल एनी ठीक, थैंक क्वेश्चन, यू सर, आई थिंक थैंक यू नाउ सर, वी कैन हैव अ डायलॉग। राजकुमार थैंक यू जी सर। हाथ उठाए हैं। मैं सुन रहा था, शायद राजकुमार जी ने ही हर प्लेटफॉर्म पर एक प्रश्न उठाया है, रूरल अर्बन का और लेस प्रिविलेज मोर प्रिविलेज का। तो राजकुमार जी अगर सर प्रणाम। मैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। जी जी। और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आप दोनों का जो डिस्कशन है सुनकर। और हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, और उसमें 5-10 बच्चे हर सेक्शन में ऐसे होते हैं कि जिनको ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग के लिए उनके गार्जियंस ने या पड़ोसियों ने दबाव बनाया कि भाई इंजीनियरिंग कराइए। तो ये मैं फर्स्ट क्लास में जाते ही पूछता हूँ कि भाई कितने बच्चे आप में से ऐसे हैं कि जो बिना इंटरेस्ट के इंजीनियरिंग में आ गए हैं। तो वो मुझको एक संख्या पता लग जाती है, और उसके लिए मेरा पूरा कोशिश ये रहता है कि जब कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं, भाई इसको पढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ गई। ये नहीं कि कोई फार्मूला हम बता दें सीधे।
अब उसका नतीजा ये होता है कि जो मेरी क्लास मुझको 40 लेक्चर्स में कंप्लीट करना था, मुझको 60 लेक्चर्स देना पड़ता है, यानी कि 20 लेक्चर एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं उन बच्चों को उस लेवल तक लाने के लिए। और उसका कभी कभी मुझको खराब नतीजा भी भुगतना पड़ता है। बच्चों का दूसरे लोगों से कंप्लेंट रहता है कि 60 क्लास लेते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल वे में लोग पढ़ाते हैं कि भाई सीधे फार्मूला बताया, कोर्स खत्म किया, 50 मिनट में अपनी क्लास खत्म कर दी, वो इंटरेक्शन से उनको कोई मतलब नहीं है। तो उसका गलत प्रभाव ये पड़ता है कि उस सिस्टम में हम अपने आप को अनफिट पाते हैं। बाकी टीचर्स या तो ऐसा ही करें, और सब लोगों को हम वैसा करने के लिए कितना भी कहें, अपने ही डिपार्टमेंट में अगर मैं कहता हूँ तो लोग वैसा फॉलो नहीं करते हैं। तो ये एक अंतर है। तो टीचर्स जब तक मन से नहीं चाहेगा कि मुझको इस तरह की टीचिंग करनी है, तो शायद हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं राजकुमार जी, हमको लगता है कि थोड़ा वेवलेंथ अलग हो रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं रिसर्च की, आप जी। बात कर रहे हैं क्लासरूम टीचिंग की। रिसर्च इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। हम लोग उस लेवल पर बात कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट जो फाइनली रिसर्च कर रहा है, डिग्री बेस्ड करे या ओरिजिनल करे। डिग्री बेस्ड रिसर्च जो है उसको हम कई बार कहते हैं एकेडेमिया में कि वो केवल ट्रेनिंग है, वो बिल्कुल रिसर्च जैसा नहीं माना जाना चाहिए। वो जो तुरंत निकला है ग्रेजुएशन से, वो सीख रहा है रिसर्च प्रोसेस, और वो अलग अलग डिसिप्लिन में अलग अलग होगा। सोशल साइंस में रिसर्च मेथड अलग होता है, साइंस इसमें सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं थोड़ा आपको रोकूंगा। हम लोगों के यहाँ एक ये सिस्टम है कि जब रिसर्च स्कॉलर आएगा, एनरोल्ड होगा, तो उससे पहले वो सिनॉप्सिस बना के लेके आएगा। तो जो स्टूडेंट सीधे एंट्री कर रहा है रिसर्च में और वो सिनॉप्सिस बनाकर लेकर आएगा, तो उसको कम से कम 1 साल 6 महीने कुछ ऐसा टाइम मिलना चाहिए कि पहले आप रिसर्च सुपरवाइजर डिसाइड कर लीजिए, एक फील्ड या एक डायरेक्शन जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद सिनॉप्सिस लेकर बनाइए और आइए। तो होता क्या है कि वो शुरू में ही फिर इधर उधर से या तो सुपरवाइजर उसको बना देते, तो उसका इंटरेस्ट वाली बात मुझे नहीं लगता, खाली फील्ड उसका डिसाइड हुआ, बाकी चीजें तो रिसर्च सुपरवाइजर ही उसको बना के देता है। नहीं राजकुमार जी, हम डिसएग्री करेंगे, अरविंद जी इसमें और बोलेंगे। देखिए ऐसा है, जो अरविंद जी ने एग्जाम्पल बताया आपको सिंगापुर के स्कूल्स का, कि 8वीं क्लास के बच्चों को कहा गया कि जाओ भाई एक अच्छा रिसर्च टॉपिक बना के लाओ। क्या वो बच्चा एक बड़ा उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा है? तो जब तक हम पहुंचते हैं रिसर्च में, तब तक हमको पता है कि हमको ये बात बड़ी परेशान कर रही है, हम इस पर रिसर्च करना चाहते हैं। तो मैं पहली बात जो आप बोल रहे हैं राजकुमार जी, वो बिल्कुल इंडियन पर्सपेक्टिव से, इंडियन इंस्टीट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि हम बच्चों को सीधा मास्टर्स के बाद कहते हैं सोचने के लिए कि तुमको रिसर्च करना है। नो, रिसर्च शुरू होना चाहिए 3री, 4री, 5वीं क्लास से, जब वो सोचने लगे। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा क्यों नहीं होता है? हम ऐसा करना चाहते हैं। तो पहली बात कि वो लेके ही आएगा प्रॉब्लम, वो सही तरीका है। हम उसको देखेंगे कि वो ठीक सोचा है कि नहीं, और अगर हम में कैपेबिलिटी होगी, तो उसको हम डायरेक्शन दे पाएंगे कि नहीं नहीं तुम ऐसा सोच रहे हो, ऐसे भी देख के देखो, ये भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। सोच ओरिजिनल ही होना चाहिए। फर्स्ट नहीं, ठीक है सर बिल्कुल ठीक जी अरविंद जी, बिल्कुल ठीक कहा सर आपने कि देखिए होता क्या है कि हम लोग इतना स्ट्रक्चर्ड कर देते हैं हर चीजों को कि जो उसकी जेन्युइन थिंकिंग, बिल्कुल सर ने ठीक कहा कि रिसर्च की शुरुआत तो प्रश्न से है ना, कि ऐसा क्यों नहीं है, और अगर ऐसा हो सकता है तो कैसे हो सकता है, चाहे वो किसी भी विषय का हो। तो क्या ये आजादी है? नहीं है। इसीलिए क्या करता है, वो किसी से इधर उधर से लेकर आता है, कहता नहीं किसी से इधर उधर लेके नहीं आओ। मैं एक और छोटा एनेक्डोट आपसे शेयर करूंगा। बीएड करने के बाद एमएड में बच्चे आते हैं और हम पहला डिसर्टेशन दिखाते हैं। तो एक बच्चे को मुझे दिया गया, उसने जॉन डब्ल्यू बेस्ट, कान और झा की किताब उठाई और उसमें से जो 56 दिए हुए थे उसमें से 8-10 कहा सर इसमें से करा दीजिए। मैंने कहा कहाँ से लाए ये सारे टॉपिक्स तुम? तो उसने बता दिया, ईमानदारी से बता दिया। तो मैंने कहा कि मान लो कि थोड़ी देर के लिए इन सबको मैं अलग कर दूं और कहूं कि तुम जब विद्यालय में पढ़ रहे थे तो वो कौन सी प्रॉब्लम थी जो तुम्हें परेशान कर रही थी सबसे ज्यादा? तो कहा कि सर सोचने दीजिए। फिर वो 2 दिनों के बाद आया और कहा कि सर होम असाइनमेंट्स जो मिलता था उसमें मुझे बहुत मार पड़ती थी। मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा कि सर कोई पढ़ा लिखा था नहीं,
कि हमें कोई गाइड करे, और टीचर एक्सपेक्ट करते थे कि सही आंसर लिख के आए। और देन एंड देयर हमने डिसाइड किया कि हमारा रिसर्च टॉपिक होगा ए स्टडी ऑफ होमवर्क पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस इन इंडिया। ये ब्रॉड टॉपिक है, और 100 लोगों से हमने इकट्ठा किया। आपको ताज्जुब होगा, इस आज जो विद्यालय में जो होमवर्क दिया जाता है और लिया जाता है, राइट, अगर आप ठीक से समझने की कोशिश करें कि हमारे कितने शिक्षक ये समझते हैं कि व्हाट इज होमवर्क, व्हाट आर टाइप्स ऑफ होमवर्क, how to assign innovative homework and what is the ultimate purpose of assigning homework। तो जब इन पे हमने डेटा कलेक्ट किया तो आपको ताज्जुब लगेगा कि हमको मतलब कुछ डेटा ही नहीं मिला। मेरा कहना है सिर्फ ये है, जो मैं सर की बात से सहमत हूं, कि हम क्यों मानते हैं कि रिसर्च सिनॉप्सिस का मतलब ये है। अगर 2 पेज में सिंपल कोई व्यक्ति लिखता है कि ये प्रश्न ठीक है और ये मैं करना चाहता हूं और इसको जानना और समझना चाहता हूं। देखिए, एक और बात जो सर ने कही, ठीक है, सर का पर्सपेक्टिव अपनी जगह पे एकदम जायज है, साइंस उसी पे और मैथमेटिक्स फोकस करता है। लेकिन बताइए, सोशल साइंस में आज तक कोई एक रिसर्च का प्रॉब्लम बताइए जो किसी भी समस्या को सॉल्व करे। सीधे कहो ना, रिसर्च हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नॉलेज हो, इंसाइट्स बढ़े। अब उसकी क्या यूजफुलनेस होगी वो हम समाज और जनता पे छोड़ देंगे। जैसे जेम्स हार्डी ने किताब लिखी है एपोलॉजीज थ्रू मैथमेटिशियंस, और आप जानते हैं हार्डी कौन था। अगर हार्डी इस दुनिया में ना होता तो रामानुजम को कोई नहीं जानता, जबकि एक ब्रिलियंट माइंड था। आप मैथमेटिक्स के हैं इसलिए मैंने आपको मैथमेटिक्स एग्जांपल दिया, लेकिन उस किताब उसने ब्रिलियंटली लिखा है कि आई एम सॉरी टू से मैथमेटिक्स इज नॉट यूजफुल एट ऑल फ्रॉम द प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। अरविंद जी, मनीष जी ने हाथ उठाया है, उनका क्वेश्चन लेंगे क्या? थैंक यू सर, आप ले लीजिए सर, आप ले लीजिए। हाँ मनीष जी, अनम्यूट करिए और अपनी बात रखिए। मोमिता विल कम टू यू आफ्टर मनीष। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं मनीष कुमार गुप्ता, मैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय में बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ सर। और सर, मेरा एक प्रश्न यही है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसमें यूजी से लेकर पीजी तक जो है, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के एंड सेमेस्टर तक पीजी में हर सेमेस्टर में प्रोजेक्ट वर्क और रिसर्च डिसर्टेशन को कंपलसरी कर दिया गया। और अगर एक जो एजुकेशन की केटरिंग की बात करें सर, तो 80 to 90% जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो स्टेट यूनिवर्सिटी से निकल करके आ रहे हैं। और एक क्लास में सर अगर 60 बच्चे हैं या 70 बच्चे हैं, और एक डिपार्टमेंट में अगर 5 या 6 टीचर हैं, और हर एक टीचर को अगर 10-10 बच्चे यूजी फर्स्ट ईयर के और 10 सेकेंड ईयर के दे दिए गए, और उसके खुद के 4-5 स्कॉलर्स हैं, आपका सर इस पर क्या व्यू है कि वो कितना समय बच्चों को रिसर्च कराने में दे सकता है और टीचिंग पे कितना समय दे सकता है? इसको सर कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं? मनीष जी, आपने जो प्रश्न हमको पूछा है वो जगदीश कुमार जी को पूछना पड़ेगा, यूजीसी चेयरमैन, या धर्मेंद्र प्रधान जी को पूछना पड़ेगा जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं। इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकूंगा, लेकिन एज एन एजुकेशनिस्ट मेरा जवाब ये है कि टीचर स्टूडेंट रेशियो हायर एजुकेशन में क्या होना चाहिए। as a researcher and an educationist, I cannot answer on behalf of the government of India or UGC। अब होता यह है कि हम अगर आज के परिप्रेक्ष्य में कहें, और ये बड़ा अहम सवाल है जो रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में खड़ा किया ही जाना चाहिए। हम अगर आज ये कहें कि भाई क्लास का रेशियो 1:15 मैक्सिमम 20 हो सकता है हायर एजुकेशन में, वही दुनिया मानती है और होना भी चाहिए। तो अगर नहीं है तो गलत है। एज अ रिसर्चर हमको सीधा करना पड़ेगा, गलत है। इसको पॉलिटिकल आंसर नहीं समझना चाहिए। आप समझ रहे हैं मनीष जी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि इसको पॉलिटिकल आंसर नहीं समझिए कि सरकार नहीं कर रही है, सरकार, ये भारत का रियलिटी है, हम उस पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो प्रश्न आपका है, 1:10 का रेशियो हम मानते हैं लोअर प्राइमरी में। एक शिक्षिका 3 साल के 10 बच्चों से ज्यादा को नहीं संभाल सकती है। हमारा क्लास साइज क्या है आंगनवाड़ी का, वो गलत है, कहना ही पड़ेगा आपको, चाहे सरकार जो भी हो। तो आप जो प्रश्न उठा रहे हैं, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में 1:60 का क्लास है इन हायर एजुकेशन, और आपको साइंस पढ़ाना है और रिसर्च कैपेबिलिटी डेवलप करना है, तो आप बिल्कुल साइंस यूनिवर्सिटी नहीं है। आंसर सिंपल ये है, ठीक है।
इसलिए ये तो मेरे लिए प्रश्न नहीं है। आप हमको पूछिए कि क्या मेथड हो, कैसे करें, वो हम बता सकते हैं, लेकिन ये क्लास साइज तो सरकारें तय करती हैं और ठीक नहीं तय हो रहा है। हमने एक कमेंट किया था बीच में मनीष जी, जो मैं दोहराना चाहूंगा। जब तक आप एक अच्छे विश्वविद्यालय को नहीं देखेंगे कि वहां का क्या तरीका है क्लास का और रिसर्च का, तब तक अंदाज ही नहीं लगेगा कि एक्चुअली रिसर्च पैराडाइम है क्या, एक अच्छा रिसर्च कैसे निकल के आ सकता है। छोटी सी बात कहूंगा, आपका स्टूडेंट रिसर्च करता है, हाँ सर, आपके डिपार्टमेंट में बैठता है, जो आपके डिपार्टमेंट का चाय बनाने का जगह है उसमें देते हैं रिसर्च स्टूडेंट को एंट्री, उसको कॉलीग मानना शुरू कर दीजिए। अगर आपको 3 घंटे बाद चाय पीने की आवश्यकता पड़ती है, तो आपके रिसर्च स्टूडेंट को भी पड़ती है, इसलिए उसको भी चाय की व्यवस्था होनी चाहिए, उसको भी एक अच्छी कुर्सी होनी चाहिए कि 6 घंटा तो बैठ सके। हम अपने लिए तो बड़ा अच्छा कुर्सी इंतजाम करते हैं और रिसर्च स्टूडेंट को कहते हैं कि तुम बैठ जाओ कहीं पर भी। These are very small things, but these are very important things. Look at various the scales of assessing research facilities of various universities and you would know that. So मेरा ये कहना है कि हम लोग लार्जर पैराडाइम ऑफ रिसर्च पर बात कर रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटी अगर 1:60-70 का एक साइंस क्लास रख रही है ग्रेजुएशन में, तो साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं आप, और आप रियली रिसर्च के लिए तैयार नहीं है। जी मौमिता जी। सर, यूजीसी ने एक्चुअली कैटेगराइज कर दिया, उन्होंने एक लेटर निकाला कि हम टीचिंग यूनिवर्सिटी अलग करेंगे, रिसर्च यूनिवर्सिटी अलग करेंगे, कैटेगरी ए बनाएंगे, कैटेगरी 2 बनाएंगे। अगेन मनीष जी, आप आज के टॉपिक से बाहर जा रहे हैं, जिस पर अगेन मेरा बहुत क्रिटिकल व्यू है। The idea of a university, I think Arvind can speak for on this topic for hours. The idea of a university, what is a university? यूनिवर्सिटी कहेंगे किसको, एक यूनिवर्सिटी टीचर कहेंगे किसको, तो वो बहुत लंबा प्रश्न है। हमारे जो यूनिवर्सिटीज हैं, लार्जली द आइडिया ऑफ ए यूनिवर्सिटी जो है उसको कंप्लाई नहीं करते हैं। हम यूनिवर्सिटी है ही नहीं। अब यूनिवर्सिटी का मतलब ही है टीचिंग एंड रिसर्च। हमने कह दिया टीचिंग यूनिवर्सिटी होगी, टीचिंग एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी होगी, और रिसर्च यूनिवर्सिटी होगी, और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी होगी। अरे यूनिवर्सिटी, हम जरा जाकर के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक्ट पढ़िए, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने लिखा था, और वो इतनी मोटी किताब है 700 पेज की, पढ़िए क्या बोलते हैं, ये विश्वविद्यालय है। तो फिर हम एक्चुअली जो आइडियल है उसको छोड़ करके जो क्रिएट कर लिए हैं उस पर हम बात करते रह जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना, हम ये यूनिवर्सिटी बना ही नहीं रहे हैं, हम ये यूनिवर्सिटीज बना ही नहीं रहे हैं, ये कहना पड़ेगा। बुरा लगता है मतलब, और इसको पॉलिटिकली ले लिया जाता है, लेकिन ये बात सच है कि यूनिवर्सिटी का एक डिफाइंड तरीका है, डिफाइंड नॉर्म्स है, उसको हम सबको भुला करके फिर कहते हैं कि हम तो ये हैं, हमको बताइए हम कैसे करें। आप बदलिए तरीके को, तभी आप यूनिवर्सिटी बनेंगे। सर थैंक यू। मौमिता प्लीज। नमस्ते सर, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज आई थैंक यू, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, एंड आई वुड लाइक टू पुट इन अ लिटिल इनपुट फ्रॉम माय साइड, लाइक मे बी आई एम टेलिंग अ स्टोरी और समथिंग लाइक दैट। एक्चुअली आप जो ये कह रहे हैं ना कि रिसर्च एमएससी में जाके या फिर मास्टर्स में जाके शुरू नहीं होता है, ये क्लास 7-8 से, लाइक तब से बच्चे क्वेश्चन करे और उसको लाइक इनकरेज करना चाहिए, उसके आंसर्स इनकरेज करना चाहिए, तभी ये रिसर्च ग्रो करता है। तो अपना टॉपिक तो आज का है प्रमोटिंग रिसर्च इन स्टेम, और स्टेम भी नहीं, ऑल थ्रू आउट द course we have learned that STEM नहीं, अभी STEAM की बात हो रहा है, where we include the art faculty also. So there is no, I don't see any separation between the social sciences and sciences. I just want to talk about promoting research. It's the school level. I'm not even talking about my students. I'm talking of my daughter, and वो उसको स्कूल में क्या प्रोजेक्ट मिला है and वो कैसे की है। लाइक स्कूल इज, आई डोंट नो हर स्कूल में ऐसे प्रोजेक्ट मिलता है कि नहीं, एंड जनरली स्कूल में जो ये बच्चों को प्रोजेक्ट मिलते हैं सारे पेरेंट्स को करना पड़ता है, एंड आई एम टू बिजी, सो आई हैव बीन लाइक फॉर द लास्ट 2 years आई बीन गाइडिंग, हाँ तुम करो और मैं तुम्हें हेल्प कर रही हूँ। तो पिछले साल का हम जस्ट 2 प्रोजेक्ट की बात करेंगे। पिछले साल उसको प्रोजेक्ट मिला था कि आप वॉल्केनिक इरप्शन होता है ऐसे 2 जगह पे आप टूरिस्ट को ले जाएंगे, तो उसका एक ट्रैवल ब्रोशर बनाएंगे। तो इसके लिए शी वाज लाइक, शी रियली गूगल में जाके सर्च किया वोल्केनोस कहाँ कहाँ हैं। अब इंडिया में एक्टिव वोल्केनो है तो वो कहाँ है, इंडिया में तो ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो नहीं है, सिर्फ अंडमान में है, तो
तो फिर अभी कहाँ जहाँ देख पाएंगे वो कहाँ, अंडमान में पास में नहीं जा सकते, इंडोनेशिया में हो सकता है। शी डिड ऑल दिस रिसर्च, फिर उसके दिमाग में आया तो फिर ऐसे जाएंगे कैसे, कितना खर्चा होगा, ट्रैवल ब्रोशर कैसा होता है, एंड शी केम अप विद सच अ वंडरफुल ट्रैवल ब्रोशर। इट्स सो सैड दैट वो लोग ले लिए, मतलब हैंड रिटन बट विद पिक्चर्स ऑफ द प्लेसेस। वो मुझे बोली कि ये जगह के बारे में मुझे लिखना है, एंड मैं सिर्फ पिक्चर देखी थी, बाकी वो खुद अपने से कंपोज की थी। एंड इट हैड शी थॉट आउट कि नेशनल ट्रैवल करने के लिए अलग से 2 अलग प्रोग्राम बनाई, एक में जो नेशनल वाले वोल्केनोज का दिखाएंगे, एक में सारे घुमाएंगे। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि एक क्लास 5-6 की बच्ची इतनी सोच सकती है। नेक्स्ट में थोड़ी सीनियर हो गई, अभी वाला बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट है। मोनिका जी रुक जाइए, मैं 3 चीजों को कनेक्ट करके देख रहा हूं। देखिए, अरविंद जी ने बड़ा अच्छा कहा था कि सिंगापुर के स्कूल में कैसे बच्चों को दिया जाता है और बच्चे कितना दिमाग लगा करके एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसका पुअर रेप्लिका आप देख रही हैं अपने स्कूल में। ठीक है, उसको कह दिया गया बनाओ, लेकिन उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं दिया गया। 1 प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट, बच्चा उसके बाद निराश हो जाएगा, अरे ये ऐसे ही हमसे फालतू कराते रहते हैं काम, कुछ होता जाता नहीं है। सिंगापुर का रेप्लिका है जो आपके स्कूल, बच्चे के स्कूल में किया गया कि भाई तुम बना के लाओ। वो कहा कि हम सन रेज का स्पीड नापना चाहेंगे या जो भी करना चाहेंगे, उसके लिए मशीन स्कूल मंगाया। अब बच्चा प्रेशर में है कि हम इसको करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे लिए अब ये मशीन भी आ गया। हमने क्या किया उसको, ऑन द अदर हैंड, तुम ये प्रोजेक्ट बनाओ, वॉल्केनो पर तो कह दिया, अब ठीक है, सबमिट हो गया, खत्म। बच्चा उत्साहित होगा आगे करने के लिए? नहीं। जो तीसरी बात हमने कही थी कि देखिए, रिसर्च फंडिंग इंटेंसिव है, पैसा चाहिए आपके डिपार्टमेंट को, आपके स्कूल को। वो फंडिंग है क्या? बिना फंडिंग का कैसे होगा? हमने फंडिंग को जोड़ा था ऑन टीचर कोलैबोरेशन एंड ट्रांसफर। हम पाते हैं कि भाई एक यहाँ पर एक्सपर्ट हम देख रहे हैं जो बड़ा अच्छा बात कर रहा है, उसको 15 दिन अपने डिपार्टमेंट में मंगा के बुला के रखें। I have experienced this. I met a professor at London. I was talking to him and I said, I'm really interested in this topic. And at the end of that luncheon meeting, he told me, would you like to come and stay in my department for a year? We would be happy to fund you. ना उसने किसी का परमिशन लिया, ना किसी से पूछा, ना कहा कि ये मेरे अधिकार में है, हम आपको 1 साल के लिए बुला के अपने डिपार्टमेंट में, 3 साल, इनफैक्ट 3 साल के लिए आपको हम विजिटिंग प्रोफेसरशिप दे सकते हैं। हम कर सकते हैं क्या? फंडिंग कहां से आएगा? ये लार्जर इश्यूज खड़े करता है। इशू ये भी खड़ा करता है कि टीचर का ऑटोनॉमी कितना है कि वो क्या क्या कर सकता है। रिसर्च को हम छोटे पैरामीटर में नहीं देख सकते हैं, उसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी का जो रिसर्च होगा वो कैसा होगा। नहीं, पहले तो देखना होगा कि रिसर्च पैराडाइम क्या है और वो ग्लोबली एक्सेप्टेड और रिकॉग्नाइज्ड है। इसलिए वो लार्जर क्वेश्चंस खड़े करता है। हम आपका सेकंड नहीं अभी लेंगे, बाद में लेते हैं। मनीष जी हाथ उठाए हुए हैं, तो मनीष जी आपका प्रश्न। आप जी मनीष। सर प्रणाम जी, आपने हाथ उठाया था लेकिन आपने शायद गिरा लिया। सर प्रणाम, मैं डॉक्टर प्रताप सिंह, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं फिजिक्स इंजीनियरिंग में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग रिसर्च के बारे में हमेशा बात करते हैं और उसको बढ़ाने के लिए भी बात करते हैं और फंड्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि जो स्टूडेंट्स रिसर्च करके या पीएचडी करके बाहर निकलते हैं, उनका जो मोस्टली जो एब्जॉर्बेंस है वो एकेडमिक फील्ड में ही होता है। बट हम जब इंडिया के बाहर जाते हैं, यूरोप में देखते हैं, यूके में देखते हैं, तो वहाँ पीएचडी स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट सारे फील्ड्स में एब्जॉर्ब करते हैं। इवन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पोस्ट्स भी आती हैं जहाँ पीएचडी रिक्वायरमेंट होती है। तो इंडिया में सर ऐसा क्यों नहीं होता? नहीं, देखिए, हम आपके फर्स्ट सेशन में ये बात उठाया गया था और वहां कहा गया था कि रिसर्च जो होता है लीडिंग टू ओनली एकेडमिक पोजीशंस है इंडिया में। हम इसके बारे में सोचे ही नहीं है। इनफैक्ट शायद ये बड़ा पॉम्पस स्टेटमेंट होगा कि हम रिसर्च समझे ही नहीं है। हम रिसर्च, जहां से मैं बात शुरू किया था, हम इसको केवल पीएचडी डिग्री मान लिए हैं। रिसर्च मींस पीएचडी डिग्री। Research has application in various areas and it's, I mean, it can be utilized, applied in many
different areas of life. तो हम वो नहीं कर रहे हैं अभी, हमको वो करना चाहिए और तभी फायदा रिसर्च का मिलेगा। साइंस टेक्नोलॉजी में रिसर्च का क्या मतलब है कि पीएचडी रिसर्च किया तो असिस्टेंट प्रोफेसर बने। हम रिसर्च करके हम नहीं बनना चाहते असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन रिसर्च अच्छा करना चाहते हैं, उसका स्कोप है क्या यहाँ पर। इसीलिए हमने कहा था कि एजुकेशन का पीएचडी उठाइए। आप 15 टर्म से बाहर निकलते ही नहीं है एजुकेशन में, 15 रिसर्च से। यस सर, मतलब रिविजिट करना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा कि हम मतलब कैसा रिसर्च कर रहे हैं और क्या उसका फायदा है समाज को। जैसा अरविंद जी बारी बारी से बोले कि रिसर्च मस्ट लीड टू समथिंग, इवन आंसरिंग अ क्वेश्चन। जो हमारे क्वेश्चन है सोसाइटी के, लाइफ के, ग्लोबल हो सकता है, लार्जर देन अ नेशन हो सकता है, हम उन प्रश्नों पर भी रिसर्च कर सकते हैं अगर वो ओरिजिनल है और किसी ऐसे इशू को आंसर करता है। तो हमको लगता है कि इसको आपने जो कहा कि भाई ये वो सुबह में उठाई भी थी मैडम जो बोल रही थी कि हम लोग केवल डिग्री बेस्ड रिसर्च नहीं करें, हम उसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में, ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च होना चाहिए, जो दूसरे देशों में है, इंडिया में नहीं है। जी सर, निधि जी आप अनम्यूट करिए और बोलिए। निधि। नमस्कार सर, मैं निधि कोयल दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएलएड प्रोग्राम में पढ़ाती हूँ। सर, आप सबकी जो बातें सुनिए, मेरी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है। जहाँ हम रिसर्च की बात कर रहे हैं वहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी, और हमें से मतलब हम सब अवेयर भी है कि सीबीएसई ने क्लास 11-12 में ये इंट्रोड्यूस कर रखा है कि स्टूडेंट्स जो भी अपने प्रोजेक्ट बनाएंगे वो रिसर्च बेस्ड होने चाहिए, और उसके लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरिया भी मेंशन कर रखा है जो इजीली सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाता है। कुछ टॉपिक्स उन्होंने मतलब सजेस्टिव टॉपिक्स भी मेंशन करे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में क्या हो रहा है सर, मैं ये स्कूल्स की दशा पे आपको बता रही हूँ। मोस्टली स्कूल्स क्या करते हैं, स्पेशली टीचर्स स्टूडेंट्स को वो प्रोजेक्ट्स की लिस्ट पकड़ा देते हैं, सीबीएसई की प्रॉपर गाइडलाइंस हैं वो सब दे देते हैं, और उन्हें कहा जाता है कि ये आपके एक्सटर्नल में काम आएंगे। जब हम यहाँ रिसर्च ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं तो ये बहुत डाउटफुल है कि स्कूल टीचर्स कितने ओरिएंटेड है रिसर्च में, और इस वजह से जो हम स्कूल सिस्टम में रिसर्च का एक आइडिया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस के साथ जा रहा है। हार्डली 10% ऑफ द टीचर्स आर गिविंग प्रॉपर डायरेक्शंस हाउ टू डू द रिसर्च, अदरवाइज रिमेनिंग स्टूडेंट्स दे आर जस्ट कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट बाय हुक और क्रुक। तो जहां हम ये रिसर्च पे कह रहे हैं तो मुझे लगता है अगर हमें स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करना है तो सबसे पहले स्कूल टीचर्स को भी इसके लिए एक प्रॉपर ओरिएंटेशन देना पड़ेगा, उनकी वर्कशॉप्स करनी पड़ेंगी। और रिसर्च क्यों जरूरी है, ये हायर एजुकेशन का विषय नहीं है, ये स्कूल एजुकेशन का भी विषय है। तो स्कूल टीचर्स को भी इसमें उसी तरह इन्वॉल्व होना पड़ेगा जैसे हम और आप हायर एजुकेशन के कंटेक्स्ट में इन्वॉल्व हैं। थैंक यू सर। नो, बिल्कुल सही निधि, आप बीएलएड को पढ़ा रही हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड योर कॉन्टेक्स्ट एंड द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग। सी, बोरोड आइडियाज पर रिसर्च बिल्कुल नहीं होगा, और हम कितने भी घंटे आपको लेक्चर कर लें, हमने इसीलिए कहा था, जो अरविंद जी के आर्गुमेंट को हम आगे बढ़ाए थे कि फिलॉसफी ऑफ मेडिसिन, केवल मेडिसिन पढ़ के तो हम फिलॉसफी ऑफ मेडिसिन नहीं कर सकते हैं, हमको फिलॉसफी भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। तो एक लर्नेड पर्सन का जो डेफिनेशन है, जो मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रांसडिसिप्लिनरी की बात होती है, वो केवल एक डिसिप्लिन को जान के नहीं। तो आपने जो कहा, हम जो टीचर अपॉइंट कर रहे हैं लोअर प्राइमरी में, आप सोचिए ना कि आपने आंगनवाड़ी में वर्कर्स अपॉइंट कर रखे हैं जो 10वीं फेल है, तो वो क्या समझेगा बच्चा क्या है, और वो क्या समझाएगा बच्चे को, और क्या तैयार करेगा बच्चे को किस काम के लिए। तो इसका पढ़ाया हुआ बच्चा जब 6 साल का होगा तो वो कैसे प्रश्न उठाएगा। आई थिंक the topic promoting research, forget about STEM and other things, promoting research will lead to many issues and complete revamping of our system. What can be summarized is that we are not a research system of education. Our system of education is bereft of research. It is only transferring knowledge and information. It is only transferring knowledge and information. It is not preparing your graduates. By graduates, I mean even class 3 pass, 4 pass, 8th pass, 10th pass, 12th pass, for the life, for the society. Research is a larger question which cannot be looked at
from a single discipline perspective. It has to be multidisciplinary, and the researcher has to be well informed, well read. Only then one can take a complete view, a 360-degree view of a problem, and that will be research. ज्ञानेंद्र, आपने हाथ उठाया था. I hope I have answered your question. Yes sir. Yes, सर एक्चुअली yes. मेरा वही क्वेश्चन था, मैम ने जो पूछा था अभी आपसे. So it's more or less like Okay, good. Rakhi has raised her hand. Rakhi, please unmute and ask your question. गुड आफ्टरनून सर. सर मैंने आपको पहली बार सुना है एंड आई मस्ट से दैट आई एम ट्रूली मेस्मराइज्ड बाय द वे. सर मैं बहुत ही अभी स्टार्ट ही किया है स्टेम एजुकेशन, इसलिए पता नहीं मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो आपको कितना मतलब लगेगा सार्थक है. सर जैसे कि है ना मेरा जो पीएचडी का टॉपिक था साइंटिफिक इंक्वायरी, तो सर यूनिवर्सिटीज को ये कौन गाइडलाइंस देगा कि इस स्टूडेंट ने ये जो रिसर्च किया है ये स्टेम बेस्ड रिसर्च है, और अगर कोई और क्योंकि ऐसे कोई डिसिप्लिन तो ओपन हुआ नहीं है, जैसे एजुकेशन डिसिप्लिन है, साइकोलॉजी है, तो ये कौन बताएगा कि ये जो स्टूडेंट का वर्क है ये कंप्लीटली स्टेम फील्ड से ही है? नहीं, बताने की जरूरत नहीं है राखी. आप मतलब देखिए, यही एक्सपेक्टेड है डिपार्टमेंट से, यही एक्सपेक्टेड है एकेडेमिया से कि आप अपने प्रॉब्लम को, व्हाट एवर योर प्रॉब्लम, अपने प्रॉब्लम को कंसिस्टेंटली प्लेस कर सके और जस्टिफाई कर सके. आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से इट्स अ गुड टॉपिक और अ बैड टॉपिक. जी जी जी. आपने काम किया है जी. चलिए मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता दूं. मैं बीए इंग्लिश ऑनर्स हूं, मास्टर्स लिंग्विस्टिक्स में हूं, एमफिल टेलीविजन पर किया और पीएचडी एजुकेशन में किया. हम हर डिसिप्लिन में परेशान थे कि क्यों कर रहे हैं. इंग्लिश करके आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट, आई एम अ फर्स्ट क्लास फर्स्ट. आई सेड कि हम क्या कर रहे हैं, शेक्सपियर कहां यूज करेंगे, वर्ड्सवर्थ कहां यूज करेंगे. हमने कहा नहीं, लिंग्विस्टिक्स कर लेते हैं. जब लिंग्विस्टिक्स किया तो कहा करें भाषा का बड़ा लेना देना है टेलीविजन से, और उसी वक्त ओपन यूनिवर्सिटीज आ रहे थे. अच्छा. मेरा डिपार्टमेंट बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा था. आई एम एमफिल फ्रॉम जेएनयू एंड माय डिपार्टमेंट वाज कंप्लीटली आई मीन अगेंस्ट माय टॉपिक कि भाई लिंग्विस्टिक्स को टेलीविजन से और उससे क्या लेना देना है. आई जस्टिफाइड. मेरा ये कहना होगा राखी, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. इफ यू हैव टेकन अ टॉपिक, फाइट फॉर इट, वर्क ऑन इट एंड प्रूव दैट it's a topic worthy of research. 3 years down the line, you may say कि अरे इस पर तो ज्यादा काम हो नहीं सका था, लेकिन you will be a trained researcher जो आपको तैयार करेगा फ्यूचर रिसर्च के लिए. हर टॉपिक हमसे अप्रूव हो या आपके डिपार्टमेंट से अप्रूव हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है. What is important in your research is that you have thought of an original problem, and that comes from your understanding. इसको एक और लेवल पर हम समझाएंगे. Maybe your topic is a foolish topic. Yes sir. But then your education has prepared you to only decide on a foolish topic. You are not responsible. Your education is responsible for that. Again, I'll have to go back and say we need to revamp the whole education system so that the students raise right question, appropriate question worthy of research. बहुत सही आपने किया है. अपना टॉपिक आप लीजिए, किसी सुपरवाइजर से मत पूछिए, उसको स्ट्रगल करिए और उसको समझाइए कि ये वर्दी ऑफ रिसर्च है और हम इसी पर काम करेंगे. आई एम श्योर यू विल इमर्ज as an original researcher and you will have a place. जी सर.